Good afternoon, children. Today we will start chapter 11, similarity. Okay. In class 9, we have learned about congruency. What is the congruency? If any triangle ABC and other triangle DEF are exactly same to each other. Exactly same to each other means if we have put triangle DEF on ABC, then triangle ABC will be fully covered. Then these are known as triangle ABC. It's similar to triangle DEF. If we can draw a circle of radius 2 centimeter and again a circle of radius 2 centimeter, then both circles are congruent to each other. But similar word is something different, different from congruency. Suppose this is a triangle ABC and this is a triangle DEF. But both are triangles, so they are similar to each other. A circle of 5 centimeter radius and a circle of 2 centimeter radius. Both are similar to each other. Why? Because both shapes are equal to each other irrespective of their shape. Shape of these two triangles are different. Shape of these two triangles are also different, but they are similar to each other because this is also a circle and these two are also a triangle. So similarity means all human beings are similar to each other. All dogs are similar to each other. They are not the exact copy of each other, but they are similar to each other because features of both are same. Similarly, mango tree are similar to each other. Either it is very big or very small. So similar means just shape is same, but size is different. If shape is same but size is different, then two geometrical figures are known as similar to each other. In class 10, we have to know about the similarity of triangles. Only we have know about the similarity of triangles. So what is the criteria or what is the condition of similarity of two triangles? Two triangles ABC and DEF are similar if first all three angles of first triangle is equal to all three angle of second triangle. This means angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E, and angle C is equal to angle F. This is the first criteria. And second one, suppose this is the triangle ABC and this one is the triangle DEF, then ratio of corresponding side. This means AB upon DE equal to BC upon EF equal to AC upon DF. These are the two criteria or two conditions for similarity of triangles. In class 10, we have learned about similarity of triangles, only triangles, okay children? And what is the criteria and condition of similarity of triangles? The angle of first, the three angles of first triangle is equal to three angles of second triangle. And second one, the ratio of
corresponding side is also equal. Here you have seen a size of both triangles are different. Size of both triangles are different means AB is not equal to DE, AC is not equal to DF, and BC is not equal to EF. But measure of angle A is equal to measure of angle D, measure of angle B is equal to measure of angle E, and measure of angle C is equal to measure of angle F. So, and second one, if we can divide, जैसे suppose करो, this side is 4, this side is 2, this side is 6, and this side is 3, and this side is 2, and this side is 1. Then we have put the value 4 upon 2, and this one BC 2 upon 1, and this one 6 upon 3. Then all are equal to 2. Okay, here 2, 2, 2. So this condition is fulfilled, and in both the cases, if two conditions are fulfilled or both two conditions are fulfilled, then triangle ABC is similar to triangle DF, and this is written in this way. Similar. This is the sign of similarity. Triangle ABC is similar to triangle DEF. Clear, children? यहाँ तक? Anyone have any problem? What is the condition of similarity? Angle of both triangles are equal to each other, and second one, the ratio of corresponding side is also equal to each other. Here, this is not the matter what is the size of AB and what is the size of D, but this angle, suppose this is 30 degree, so this angle is also 30 degree. And second one thing जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो सबसे important है, when you have write down the congruency, then you have write down triangle ABC is congruent to triangle DEF. In this case, you have not considered either angle A is angle D or angle A is angle E. But in case of similarity, children, you have to always write in the proper way. A, D, then D. Suppose this is changed, the angle is E, D, and F. Then, and again you have write down, this is in this way. B is equal to D and C is equal to F. Then you have write down triangle ABC is similar to triangle E, D, and F. This is very important in the case of similarity. You have to always write down in the sequence. जो एंगल जिस दूसरे ट्रायंगल के एंगल के इक्वल है, उसी के अकॉर्डिंग हमें सिमिलरिटी लिखनी है. अगर हम इसे आगे पीछे लिखेंगे, दिस मीन्स कि अगर हम सीक्वेंस में नहीं लिखेंगे जिस सीक्वेंस में वो एंगल है इक्वल, तो ये गलत हो जाएगा. अगर मैं इस केस में लिख दूं ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, देन दिस इज रॉन्ग and this is the right, because here angle A is not equal to angle D. Here angle A is equal to angle E. So always you have to consider which angle is equal to the another angle of the second triangle. This is very important in case of similarity, and in congruency this is not important. You have also write down triangle ABC, triangle ACB और triangle BAC. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कॉन्ग्रुएंसी में, क्योंकि वहां पर एंगल का रोल बहुत ज्यादा नहीं होता था. वहां पे जो रोल होता था बच्चों, दो एंगल साइड उसके बीच का एंगल, दो एंगल उसके बीच की साइड, दिस इज द इम्पोर्टेंट देयर. बट हेयर इज द सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज समटाइम दिस इज नॉट गिवन दैट which angle is equal to the another angle of the second triangle. In this case you have take the help of this. From this you have clearly know angle A is equal to angle E, angle B is equal to angle D, and angle C is equal to angle F. So this is very important in the case of similarity. Okay children, so what is the similarity? Similarity means shape is same but size is not exact the same. Here two triangles are similar because shape is same but size is not same. But what is the condition or what is the criteria of similarity of two triangles? All three angles are equal to each other and the ratio of corresponding side is also equal to each other. If both cases are exist,
then two triangles are similar to each other, otherwise two triangles are not similar to each other, and it is applicable for all the। मैं यहाँ पर वापस रिपीट नहीं कर रही हूँ बच्चों। ट्रायंगल 3 तरह के होते हैं, एंगल के बेसिस पर या साइड के बेसिस पर 3 तरह के होते हैं। अब 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे चिल्ड्रन, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर ट्रायंगल होंगे तो वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट भी होंगे और सिमिलर भी होंगे, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल के साइड इक्वल होते हैं। और उस केस में अगर हम अगर दूसरा ट्रायंगल ले ले तो वहां भी अगर आप 60-60 के एंगल ले रहे हो तो जनरली वो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंसी दोनों को फॉलो करते हैं। बट यहाँ पर देखो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बट ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, क्योंकि आपने देखा, मैं आपको प्रूव करके दिखाई कि कोरोस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल है। और आप एंगल के भी नेम ले सकते हो, जैसे सपोज करो ये 3 है, ये 45 है, और फिर 180 से इसको माइनस कर तो जो आ जाए वो आपका थर्ड एंगल। कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। आपका जो एक्सरसाइज 11.1 है चिल्ड्रन, पेज नंबर 102 पे है, ये बिल्कुल इजी है, फिल इन द ब्लैंक्स है। ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर बिकॉज ऑल द सर्कल्स हैव डिफरेंट रेडियस। ऑल द स्क्वायर्स आर ऑल्सो सिमिलर। All dash triangles are similar. All dash triangles are similar. कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल आप किसी भी साइज का ले लो चिल्ड्रन, आप इस साइज का ले लो या इस साइज का ले लो, हमेशा इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। यहाँ भी 6 कंडीशन नहीं है चिल्ड्रन, मैं आपको बताऊंगी। यहाँ भी क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंसी की तरह कि 3 के हेल्प से ही हम 2 ट्रायंगलों को सिमिलर कर लेंगे, है ना। जैसे वहां पर एस था, यहाँ पर एक ए कॉन्ग्रुएंसी है। अभी मैं बताऊंगी आगे। अगर 2 ट्रायंगल्स में तीनों एंगल इक्वल हो जाए तो अपने आप ये भी जो इनके साइड का रेशियो है ये भी चिल्ड्रन इक्वल हो जाता है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में हमें मालूम है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल जो होते हैं 60 डिग्री के होते हैं, चाहे वो किसी भी साइज का इक्विलैटरल ट्रायंगल हो। सपोज करो ये मैं 5 सेंटीमीटर साइड की इक्विलैटरल ट्रायंगल ले रही हूँ, ये 3 सेंटीमीटर की ले रही हूँ चिल्ड्रन। तो यू नो दैट इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल all 3 sides are equal and all 3 angles are equal। तो पहला क्राइटेरिया तो कंप्लीट हो गया, 60-60-60, and here you have see that 5/3, 5/3, 5/3। So second criteria is also fulfilled. So all equilateral triangles are similar to each other. Okay. Fourth, 2 polygons having same number of sides are similar। यही दोनों कंडीशन है बच्चों। उनके एंगल इक्वल होने चाहिए, एंगल्स ऑफ बोथ आर इक्वल टू ईच अदर and ratio of corresponding side is also equal to each other। पढ़ लेना इसमें। अब सेकंड बच्चों ट्रू फॉल्स है, बना लेना आप लोग, कुछ नहीं है इसमें। और थर्ड में आपको 2 एग्जांपल देने हैं सिमिलर फिगर के डायग्राम के साथ। तो 2 बनाने हैं, 2 सर्कल डिफरेंट रेडियस के आप ड्रॉ कर लेना और 2 ट्रायंगल बना लेना। लेकिन ट्रायंगल बनाते समय आप एक बात का ध्यान रखना कि एंगल तीनों इक्वल होने चाहिए। आप एंगल तीनों इक्वल लोगे तो अपने आप दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? फर्स्ट जो पार्ट था चिल्ड्रन वो हमारा सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट था, व्हाट इज द सिमिलरिटी। और ये जो हमारी एक्सरसाइज थी वो हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रही थी विद द हेल्प ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स। ओके। अब जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट है सिमिलरिटी में वो है हमारा थेल्स थ्योरम। जैसे 9th में आपने मिड पॉइंट थ्योरम किया था ना चिल्ड्रन, उसी तरह से इसको हम, इसके 2 नाम है चिल्ड्रन। हाँ जी, झील कर लेना इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स ही तो है बेटा। ट्रू फॉल्स चाहो तो बुक में लगा लेना, ट्रू फॉल्स आप लोग बुक में कर लेना, थर्ड क्वेश्चन बुक में कर लेना और फर्स्ट कर लेना, सेकंड बुक में ही कर लेना। हो गया, फर्स्ट और थर्ड को कॉपी में कर लेना, है ना। देखो सिमिलरिटी में अब बच्चों आप यहाँ कॉन्सेंट्रेट हो जाओ, वो तो कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पे ये थ्योरम जो है इसके 2-3 नाम है। पहला नाम तो इसका बीपीटी है। बीपीटी का मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। प्रोपोर्शनल समझते ही हो बच्चों, हम छोटी क्लास से प्रोपोर्शनल करते आ रहे हैं। किसी भी 2 चीज के रेशियो को हम प्रोपोर्शनल कहते हैं, जैसे A/B इज प्रोपोर्शनल टू C/D। यही यहाँ पे साइड है बच्चों, फर्स्ट साइड, सेकेंड साइड और एक और आ जाता है थर्ड साइड इज ऑल्सो। चिल्ड्रन अब सब आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप लोग, दिस इज फर्स्ट वन थ्योरम। सिमिलरिटी का पहला थ्योरम हम करने जा रहे हैं।
हम सिमिलरिटी का पहला चिल्ड्रन, बाकी बच्चों को मेरी आवाज और वीडियो सब सही दिख रही है ना, एक्सेप्ट विवेक, और बाकी बच्चे आप मेरी आवाज और वीडियो दोनों क्लियर देख पा रहे हैं या नहीं, बताएं मुझे। ओके, आप सबको मेरी आवाज और वीडियो दोनों क्लियर आ रही है ना, मेरे साइड से बिल्कुल क्लियर है चिल्ड्रन। अब देखो बच्चों, सिमिलरिटी में, और अब यहाँ पे आप सब कॉन्सेंट्रेट हो जाना चिल्ड्रन, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। दिस थ्योरम इज नोन एज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और दिस इज ऑल्सो नोन एज थिल्स थ्योरम। ये थिल्स नाम के साइंटिस्ट ने इसको प्रूफ किया था बच्चों, इसलिए इसका नाम थिल्स थ्योरम है। अगर ये दोनों वर्ड में भी आपको लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाना कि ये वही थ्योरम है। अब हम जाने हमारा थ्योरम क्या है। सबसे पहले मैं आपको थ्योरम का कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। अगर कोई भी ट्रायंगल है, सिर्फ इफ इन एनी ट्रायंगल एबीसी, अगर हम ये जो इसकी साइड है बीसी, कोई भी साइड ले सकते हैं चिल्ड्रन, बीसी ले सकते हैं, एसी ले सकते हैं, एबी ले सकते हैं, इसके पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करें। और ये जो पैरेलल लाइन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं चिल्ड्रन, ये लाइन, ये कोई मिड पॉइंट नहीं है। आपको क्लास 9th में याद होगा कि हमने यहाँ मिड पॉइंट लिया था और मिड पॉइंट से लाइन ज्वाइन किए थे, और हमने प्रूव किया था कि ये जो लाइन होती है थर्ड साइड के पैरेलल भी होती है, और साथ ही साथ हमने ये भी प्रूव किया था कि वो थर्ड साइड का हाफ होता है। यहाँ पे हम प्रूव करेंगे, कहीं से भी लेंगे बच्चों, है ना। तो मैं देखो थोड़ा ऊपर से ही ले लेती हूँ, जिससे आप आसानी से समझ सकते हो कि दिस इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। सपोज ई एंड एफ, दिस इज ए लाइन विच इज पैरेलल टू द बी सी। ओके, तो हमें प्रूफ ये करना है चिल्ड्रन, गिवन में लिख देती हूँ, पहले प्रूफ समझा रही हूँ। हमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहता है कि ये जो साइड को जो ये रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब ए अपॉन बी, ये इक्वल होगा चिल्ड्रन ए एफ अपॉन सी एफ, या हम इसको ए एफ अपॉन एफ सी भी ले सकते हैं, है ना। इसको कंटिन्यू में ही ले लेते हैं। ए ई अपॉन ई बी is equal to AF upon FC. So again I am repeating, if in any children, if a line is drawn at two sides which is parallel to third side, then it divides the given sides in the equal ratio. Okay, ये थ्योरम आपके बुक में भी लिखा हुआ है। If a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides, then it divides the two side in the same ratio. Okay children, ये तो हमारा है, ये तो हमारा थ्योरम हो गया, है ना। अब देखो इस थ्योरम में गिवन में क्या है। अब बच्चों आपको मैथ्स में 3 तरीके से ये थ्योरम मिल सकता है। एक तो जनरली ये लैंग्वेज ही मिलती है बच्चों, तो आपको ये थ्योरम बिल्कुल याद होना चाहिए कि क्या है थिल्स थ्योरम, क्योंकि हो सकता है आपको थिल्स थ्योरम तो आता हो, बीपीटी तो आता हो, लेकिन जब वो लाइन में मिल गया, जैसे मैंने अभी पढ़ा आपको, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, देन इट डिवाइड्स द टू साइड इन द सेम रेशियो। तो अगर ये लैंग्वेज में ही जनरली बोर्ड में आता है चिल्ड्रन, अगर ये लिखा हुआ हो तो आप समझ जाना कि ये हमारा थिल्स थ्योरम है। समटाइम डिफाइंस थिल्स थ्योरम आता है, तो आपको थ्योरम पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, ताकि आप लैंग्वेज में भी उसको लिख सको। ओके, और इसका नाम प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्यों पढ़ा, आपको समझ में आ गया कि ये सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसलिए इसका नाम प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ा। अब चिल्ड्रन यहाँ पर ट्रायंगल है हमारा, इसमें गिवन में क्या है, एबीसी इज ए ट्रायंगल, और कुछ नहीं मिला हुआ है सिवाय ई एफ पैरेलल टू बीसी के, है ना। सिर्फ ई एफ पैरेलल टू बीसी मिला है गिवन में चिल्ड्रन, और कुछ भी नहीं मिला है, और ये हमें प्रूव करना है। अब आप आराम से देख लो, हम बिना कंस्ट्रक्शन क्योंकि कुछ भी हमारे पास नहीं है चिल्ड्रन, है ना। अब देखो यहाँ पे हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। आपको मैं क्लास में बताई हूँ बहुत बार कि जब मुझे लग जाए कि कुछ भी नहीं है तो समझ जाओ कि यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करना है। एंड ऑल थ्योरम्स आर प्रूव्ड अर्लियर फॉर यू, आपको केवल समझना है और करना है, थ्योरम्स ऑलरेडी आपके लिए प्रूव है। देखो यहाँ से हम 2 परपेंडिकुलर डालेंगे बच्चों, एक तो इधर परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है ना, और एक परपेंडिकुलर में इधर डालेंगे। मैं आपके आराम के लिए क्या कर रही हूँ बच्चों, जो बुक ने यूज किया है वही यूज कर दे रही हूँ, ताकि अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप देख लेना। ऐसे ये बहुत इजी है, मैंने सिर्फ नाम इसलिए वही रख दिए कि अगर कभी अटक जाओ तो आप बुक में जाके देख लेना। दिस थ्योरम्स आर ऑलरेडी प्रूव्ड इन द बुक्स। एफ एंड जी एंड ज्वाइन ई टू सी एंड एफ टू बी।
क्या क्या किया कंस्ट्रक्शन में बच्चों? ड्रॉ परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर है बच्चों, ऑलरेडी मैंने ये मान रखा था बच्चों, तो ये डी कर लो, इसको ई कर लो, इसको डी कर लो, डी ई और एफ सी, ऐसे कुछ भी मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मानना वही लिखना। ड्रॉ परपेंडिकुलर ई एफ एंड डी जी ऑन, ये कहाँ परपेंडिकुलर डाले हैं बच्चों? ए बी पर, एंड ये कहाँ डाले हैं बच्चों? हम ए सी पर। ये लैंग्वेज अपनी लिखना, ए सी डी जी ऑन ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। और अब ज्वाइन डी टू सी, पहले मैंने ई लिख दिया था इसलिए हाथ में बार बार वही आ रहा है, ज्वाइन डी टू सी एंड बी टू ई। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक किसी बच्चे को, है ना? अब देखो आगे क्या करते हैं प्रूफ में। अब प्रूफ में चिल्ड्रन, मैं देखो ये ट्रायंगल एडीई ट्रायंगल ले रही हूँ, इन ट्रायंगल एडीई, और एडीई नहीं ले रही हूँ ट्रायंगल, मैं एक ही साथ लिख देती हूँ, मैं एरिया निकाल रही हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई क्या होगा बच्चों? हाफ इंटू, एडीई ले रही हूँ, 2 बार एडी आएगा इस बार, लेकिन एडीई का मैं बेस बच्चों एडी ले रही हूँ, हाफ इंटू एडी, बेस और परपेंडिकुलर क्या है चिल्ड्रन? ईएफ। देखो फिर से बता रही हूँ, देखो एडीई ट्रायंगल दो तरफ से है, एक बार इस ट्रायंगल का बेस ये हो सकता है और एक बार बेस ये हो सकता है। अभी पहली बार में मैं बेस एडी ले रही हूँ, तो जब बेस एडी लूंगी तो परपेंडिकुलर क्या होगा? ईएफ। तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया बच्चों? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो दिस इज हाफ इंटू एडी इंटू ईएफ। अब देखो चिल्ड्रन आराम से यहाँ पर देखना तुम, कि जब हम ये ट्रायंगल लेंगे, देखो ये वाला ट्रायंगल, ये जो डॉटेड लाइन से है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका नाम क्या हो गया? बीडीई। ये देखो एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है ना, हाफ इंटू बीडी या डीबी, कुछ भी लिखो, डीबी। और बच्चों ऑब्ट्यूस एंगल तुम्हें याद होगा, 9th क्लास में हमारे पास आया था, ऑब्ट्यूस एंगल का परपेंडिकुलर याद है ना, बाहर की तरफ होता है, तो इस ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर होगा बच्चों वो कौन सा होगा? ईएफ ही होगा। कोई दिक्कत नहीं किसी को? और कैसे याद रखेंगे चिल्ड्रन ये भी बता देती हूँ, देखो इसको देखते हुए याद रखेंगे। हमारे पास देखो बच्चों ये बदल गया, यहाँ पर नाम बदलने से इसको बदल लो, मैं एक्चुअली एडी ली थी ना, फिर मैं आपके बुक के अकॉर्डिंग इसको चेंज की, तो ये हो गया एडी अपॉन डीबी और उस तरफ हो गया एई अपॉन बीसी। नेमिंग से कोई नहीं फर्क पड़ता, अगेन रिपीट कर रही हूँ, अभी पहली बार बना रही हूँ इसलिए मैं बुक की नेमिंग ले ली हूँ, आगे मैं नहीं लेने वाली हूँ, ताकि अगर कहीं आपको कंफ्यूजन हो तो आप बुक की हेल्प ले सको। तो अब देखो यहाँ पर एडी है ना चिल्ड्रन, इसलिए मैं एडी ली, फिर नीचे डीबी था ना बच्चों, इसलिए मैं डीबी ली। अब डिवाइड कर दूंगी, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड। अब सेकेंड से डिवाइड कर देंगे बच्चों तो ऊपर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई और नीचे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, और इधर जो है लिख लेते हैं हाफ इंटू एडी इंटू ईएफ, और नीचे आ गया चिल्ड्रन हाफ इंटू डीबी इंटू ईएफ। अब देखो इसमें क्या हुआ, ईएफ से ईएफ कट गया, हाफ से हाफ कट गया, और मुझे मिल गया एडी अपॉन डीबी, और इसको 1a कर कर छोड़ दो चिल्ड्रन, है ना। अब आप यहाँ तक करो, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। बच्चों होते ही आप डन लिख देना, थ्योरम थोड़ा बड़ा है।
ओके चिल्ड्रन, अब ना देखो बच्चों, अब इधर का हमने ले लिया, देख लिया ना, ये वाला पार्ट हमने ले लिया है। अब हम इस वाले पार्ट पर काम करेंगे, इधर वाले पार्ट पे, है ना। अब देखो, इधर से भी वही ट्रायंगल आएगा चिल्ड्रन, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, लेकिन इस बार जब एडीई लेंगे चिल्ड्रन तो हाफ और बेस इधर का लेंगे ए, तो हाइट क्या हो जाएगी चिल्ड्रन, डीजी, इसको मान लो 30। और फिर इसी तरह से देखो, इधर से ये ट्रायंगल लिए थे ना, इस तरफ से ट्रायंगल हो जाएगा डी ई सी या सी डी, जो भी लेना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, अब ये हो जाएगा हाफ और बेस हो जाएगा ईसी, और वही सेम कॉन्सेप्ट, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है चिल्ड्रन, तो इसकी जो परपेंडिकुलर या हाइट जो होगी वो बाहर वाली हो जाएगी, डीसी 4। फिर डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाई 4, ठीक है ना। बस मुझे इसकी जरूरत है, मैं इसको रख रही हूँ यहाँ पे। अब देखो, डिवाइड कर देते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, दिस इज इक्वल टू हाफ AE DG एंड अपॉन हाफ EC एंड DG। अब देखो, डीजी से डीजी कट गया, हाफ से हाफ कट गया, और अब AE अपॉन EC, इसको B मान लो। अब ध्यान से देखना, जो मैं समझा रही हूँ वो समझना, आप लोग लिखना बाद में। देखो, दोनों जो इक्वेशन है चिल्ड्रन, ध्यान से देखो, जो लिख रखी हूँ A और B, दोनों का जो यहाँ जो ऊपर है सेम है, यहाँ भी ट्रायंगल ADE है और यहाँ भी ट्रायंगल ADE है। अब नीचे आ जाओ, नीचे वाले ट्रायंगल देखो, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, ये दोनों ट्रायंगल जो चिल्ड्रन है वो सेम बेस डी पर है और बिटवीन टू पैरेलल लाइंस है। तो आपको पता है ना कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल, देखो ये भी 9th में हमने किया था, यहाँ देखो ध्यान से, अगर दो ट्रायंगल्स हैं बच्चों इस तरह से, ये सपोज करो ऊपर पैरेलल लाइन सेम है ना, तो याद होगा ना तुम्हें, देखो जो हाइट होगी दोनों ट्रायंगल के लिए सेम होगी और बेस सेम है, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। अगर कोई भी दो ट्रायंगल दो पैरेलल लाइन और सेम बेस पर है तो उनका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है चिल्ड्रन, तो बेस तो सेम ही है और दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दोनों की सेम हो गई, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया, सेम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। रीजन देंगे, triangles are on same base and between same parallel lines, ठीक है ना। अब देखो, ऊपर वाला तो सेम था ही था, नीचे भी सेम हो गया, तो दोनों के LHS क्या हो गए, दोनों के LHS इक्वल हो गए। तो अब हम लिखेंगे फ्रॉम A एंड B, दोनों के LHS इक्वल हो गए चिल्ड्रन, तो दोनों के RHS भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो क्या मिल गया मुझे, AD अपॉन DB इक्वल टू, यहाँ हमने निकाला है AE अपॉन EC। आ गया समझ में सबको, या वापस रिपीट करूं। दिस इज आवर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थियर्म्स थ्योरम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम एज वी हैव डन इन द मिड पॉइंट थ्योरम इन क्लास 9। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है? और चिल्ड्रन, जिस वक्त मैं आपको समझाती हूँ ना, उस वक्त आप सब मुझसे समझो, और मैं फिर टाइम देती हूँ आपको, मैं 5 मिनट्स रुकती हूँ, फिर आप नोट डाउन करो। लेकिन जिस वक्त मैं समझा रही हूँ उस वक्त आप सब ध्यान से समझो कि मैं कैसे समझा रही हूँ, फिर आप लिख लो, लिखने के बाद आप डन कह दो, तभी मैं आगे बढ़ूंगी।
वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं है चिल्ड्रन, आगे आपको अच्छे से समझ में। यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमने एरिया की कॉन्सेप्ट ली है। क्या क्या याद रखना है बच्चों, ये भी बता देती हूँ। की पॉइंट क्या है इस थ्योरम को याद रखने के। सबसे पहले तो हमें परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ करना है, ये हमें याद रखना है चिल्ड्रन। और दूसरा चीज हमें हमेशा याद रखना है कि ये दोनों जो ट्रायंगल हैं, जो सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है, उनके एरिया इक्वल होते हैं। ये दो बातें हमें याद रखनी है, उसके बाद तो थ्योरम अपने आप प्रूव हो जाता है ना। हो जाए तो आप डन लिखो, फिर मैं इसका कन्वर्स बताती हूँ जो हमारा थ्योरम 11.2 है। अभी टाइम है चिल्ड्रन, हो जाएगा ये भी हमारा थ्योरम। दो थ्योरम है इस एक्सरसाइज के पहले, एक तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम हुआ और कन्वर्स होगा। कन्वर्स में बस यही होगा चिल्ड्रन, क्या होगा कि ये इक्वल दिया रहेगा, ये हमें इक्वल दिया रहेगा और हमें प्रूफ करना होगा कि डी जो है वो पैरेलल है बीसी के। रब कर दो बेटा, हो गया सबका। अब देखो इसी थ्योरम का कन्वर्स बता रही हूं मैं। लाइन जब पैरेलल थी बच्चों, जब लाइन पैरेलल थी तो रेशियो साइड के इक्वल थे जहां पर वो कट कर रहा था। अब इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, ये आपके बुक का थ्योरम 11.2 है। और अब मैं खुद से ले रही हूँ बच्चों, अपनी जो भी मुझे एबीसीडी लेनी है आप उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। यहाँ पे चिल्ड्रन ये कहेगा कि कोई भी ट्रायंगल अगर एबीसी है और इसमें डी जो है, डी और ये 2 पॉइंट्स हैं दोनों साइड्स पर जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चों कि AD अपॉन DB इक्वल है अपॉन BC के। ये गिवन है बच्चों इन ट्रायंगल ABC। क्या प्रूफ करना है हमें चिल्ड्रन, टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है D पैरेलल टू BC। ओके, ये तो हमारा था थ्योरम। व्हाट इज द कन्वर्स ऑफ द थ्योरम, देखो लिख रखा है बुक में। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, इफ ए लाइन divides the any two sides of a triangle in the same ratio, then this line is parallel to the third side। एक बात याद रखना चिल्ड्रन कि ये इधर से तीनों तरफ से एप्लीकेबल है। क्योंकि सामने से जब हम साइड लेते हैं तो हमारे लिए बनाना इजी होता है, इसलिए हम हमेशा जो है बेस के पैरेलल ले लेते हैं। लेकिन ये एप्लीकेबल किसी भी टू साइड से है, आप ट्रायंगल की किसी भी टू साइड्स को ले सकते हो। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पे मुझे पैरेलल प्रूव करना है। अब आप सबको पता है ना, पैरेलल के लिए एक कोरिस्पॉन्डिंग एंगल होता है, एक ऑल्टरनेट एंगल होता है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। हमारे पास प्रोपोर्शनल है चिल्ड्रन, और प्रोपोर्शनल से ना तो हम क्या है, पैरेलल के लिए हमने 9th क्लास में देखो 3 चीजें पढ़ी है, या तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए, या तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाए बच्चों, या तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 डिग्री हो जाए। कुछ नहीं है हमारे पास यहाँ पर, हम कुछ भी नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि पैरेलल ही नहीं है। और जो गिवन है ना वो रेशियो है, और इस रेशियो से हमें सिमिलर जो हमने पढ़ा है 9th क्लास में, वहां रेशियो कहीं दूर दूर तक नहीं आता था। तो अब यहाँ पर बच्चों हम कॉन्ट्राडिक्ट की तरह, जैसे मैं आपको √2 √3 प्रोपोर्शनल इरेशनल नंबर बताती थी ना कि प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, पहले तो मान लेंगे कि ये पैरेलल नहीं है। अब ये पैरेलल नहीं है चिल्ड्रन, तो कोई ना कोई तो लाइन होगी ना जो पैरेलल होगी, वही करेंगे हम यहाँ पे। मान लेंगे कि ये पैरेलल नहीं है, तो एक और कोई तो लाइन होगी, ये लाइन हमारी D डैश होगी। तो ये क्या कर रहे हैं, हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, लेट D डैश पैरेलल टू BC। ठीक है ना, जब कुछ नहीं होता ना चिल्ड्रन तो हम कॉन्ट्राडिक्ट से प्रूव कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे मान ले रहे हैं कि हमारा जो है D पैरेलल नहीं है जो हमें प्रूव करने दिया गया है। तो अगर D नहीं है पैरेलल चिल्ड्रन, तो कोई तो लाइन होगी जो पैरेलल होगी, उस लाइन को हमने कंस्ट्रक्शन से D डैश ले लिया और इसको ब्रोकन लाइन से दिखा देंगे। ठीक है ना, अब हम इसको प्रूव करते हैं। देखो कैसे प्रूव करेंगे। अब प्रूफ में हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC D डैश
पैरेलल टू BC, इससे बाई कंस्ट्रक्शन। तो क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, AD अपॉन DB इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C, किससे, जो जस्ट अभी हमने बीपीटी थ्योरम किया है, फ्रॉम थेल्स थ्योरम या फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको वन कर लो। बट AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये गिवन है चिल्ड्रन हमें। तो इन दोनों से क्या मिला मुझे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों के LHS इक्वल है चिल्ड्रन, तो RHS भी इक्वल होंगे। AE डैश अपॉन E डैश C इक्वल टू, अब ये जो मैं अभी आगे करने वाली हूँ ना बच्चों, ये खूब यूज करूंगी आगे मैं थ्योरम प्रूव करने में, इसलिए ध्यान से देखना। अब मैं इसको क्या करने वाली हूँ चिल्ड्रन, दोनों ओर मैं 1 ऐड कर रही हूँ, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। क्यों कर रही हूँ आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अब देखो, AE डैश दिख रहा है ना आपको, AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC प्लस 1। चिल्ड्रन इसके नीचे का पार्ट मैं इधर लिख रही हूँ, है ना, तो LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा, AE डैश प्लस E डैश C अपॉन E डैश C इक्वल टू, अब ये वाला पार्ट इधर जा रहा है, AE प्लस EC अपॉन EC। अब ध्यान से देखो चिल्ड्रन, एक डायग्राम में देखो, AE डैश और E डैश C भी मिलकर AC है और AE प्लस EC मिलकर भी AC है ना। अब ये मैं सिर्फ ये गिवन वाला पार्ट कर रही हूँ, है ना, बस इतनी जरूरत है मुझे। तो क्या हो गया, AC अपॉन E डैश C इक्वल टू AC अपॉन EC। अब देखो ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गए, दिस इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, E डैश C इक्वल टू EC। अब बताओ ये कभी पॉसिबल है कि E डैश C और EC दोनों में आपस में इक्वल हो जाए? ये सिर्फ एक कंडीशन में बच्चों पॉसिबल है। कब पॉसिबल है, दिस इज ओनली पॉसिबल, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन E डैश coincides with E डैश coincides with E। अब जब E डैश और E coincide हो गया चिल्ड्रन, जब E डैश और E coincides हो गया तो क्या हो जाएगा, दोनों एक हो गया, therefore D parallel to BC and hence proved। बेटा बोर्ड बाकी बच्चे क्लियर दिख रहा है, मेरी साइड से तो बोर्ड क्लियर आ रहा है बच्चों। और ये किशन और शिवम के अलावा बाकी बच्चे आप बताओ, बोर्ड दिख रहा है आपको क्लियर? किशन और शिवम के अलावा बाकी बच्चे बताओ, दिख रहा है ना बेटा? आप लोग अपना नेटवर्क चेक करो, किशन और शिवम। अभी दिख रहा है बेटा क्लियर आपको सोनू? मेरे इधर बहुत कम नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है बच्चों। लास्ट लाइन रिपीट कर दूं, AE डैश, यही वाला ना बेटा, AE डैश अपॉन E डैश C, AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1 इक्वल टू AE अपॉन EC प्लस 1। और फिर ये क्या हो जाएगा, AE डैश प्लस LCM लेना है बच्चों, AE डैश प्लस E डैश C अपॉन EC और AE प्लस EC अपॉन EC। अब कैंसिल हो गया। अब ये वाली लाइन लिखी हुई है, दिस इज ओनली पॉसिबल, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन E डैश coincides with E, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन E डैश coincides with E। अब जब दोनों पॉइंट कोइंसाइड हो गए चिल्ड्रन, मतलब ये क्या है, दोनों अलग अलग थे ही नहीं, बल्कि दोनों क्या थे, सेम थे। तो देयरफॉर DE पैरेलल टू BC हैंस प्रूव्ड। आज बच्चों एक्सरसाइज तो हम नहीं स्टार्ट कर पाए, दोनों थ्योरम हो गए हमारे। आप दोनों थ्योरम को 2 बार रिपीट करना
और मैं थोड़ा सा आज आपको होमवर्क दे रही हूँ, बहुत इजी वाले पार्ट है 11.2 एक्सरसाइज में। देखो यहाँ पे चार साइड्स है ना बच्चों, तो इनमें कोई भी 3 दिया हुआ रहेगा और चौथा निकालना होगा आपको। कोई भी 4 में से, आपको पता है AD/DV इज इक्वल टू AE/EC, तो कोई भी 3 आपको दिए हुए हैं, 4th निकालना है। तो आप 11.2 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बनाना बच्चों होमवर्क में, है ना। और जो नहीं आएगा वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी। सो इन होमवर्क डू क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 11.2। ओके चिल्ड्रन, लिखने की जरूरत नहीं है ना। डू क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 11.2।